Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 18th of November. Session will be quite interesting and important students. In this video we are talking about Janjatiya Gaurav Divas. Then we are talking about Ministry of Health and Family Welfare. They have recently celebrated Amit Pharmacy's 10th anniversary. Then employability rises to 56.35% and women surpasses men for the first time in 5 years. This is in the India Skill Report for 2026. Then IOCL, BPCL, HPCL, they have signed a 1-year contract to import 2.2 million ton per annum of liquefied petroleum gas from USA. All these things and many more will be discussed in this video, students. So stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. Prime Minister Narendra Modi has addressed Janjatiya Gaurav Divas and has inaugurated development projects worth 9,700 crore rupees in Gujarat. Right? And also remember, students, this Janjatiya Gaurav Divas program, it is commemorating 150th birth anniversary of the tribal leader and freedom fighter Dharti Abba Bhagwan Birsa Munda. And during this event, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated various development projects worth more than 9,700 crore rupees here. Right? Here you can see that during this, where was this event held? At the Dediyapada, Narmada district of Gujarat. Right? Very important, students. Here, if we talk about some of the project here, you can see that key progress made by the Government of India initiatives. This is also important. But apart from this, remember PM Janman scheme, that is PM Janman scheme, that is your Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Maha Abhiyan and Dharti Abba Janjati Gram Utkarsh Abhiyan, that is DA Jagua. They both initiatives were launched here. Right, here has Prime Minister Narendra Modi has also inaugurated 228 multi-purpose centers that serve as the hub for the community-based activities. Also, he flagged off 250 buses for 14 tribal districts of Gujarat. Right? Then apart from this, if we see here, we have seen an increase in the total tribal enrollment. Correct? That is, we are seeing that 60% increase in the tribal enrollment in the schools. Then Dharti Abba Tribal Village Utkarsh Abhiyan, he informed, that is Prime Minister Narendra Modi informed more than 60,000 villages across the country have joined this campaign, bringing the piped drinking water, telemedicine and community-led development plans. Also increase in the MFP items under the MSP, that is your minimum support price, and MFP is your minor forest produce. Correct? So he mentioned that the number of MFP items under MSP increased from 20 to nearly 100, promoting Shri Anna, which directly benefits the tribal farmers. Next, students, is your Ministry of Health and Family Welfare. They have celebrated Amrit Pharmacy's 10th anniversary and has inaugurated 10 new Amrit outlets across India. Correct? So we are talking about Amrit. Amrit is your affordable medicine and reliable implants for treatment. Right? That is your Amrit. So recently, Union Minister JP Nadda, who is our Union Minister of Health and Family Welfare, inaugurated Amrit's Pharmacy's 10th anniversary that was celebrated where, what is the location where this event was held for the same? At Bharat Mandapam in New Delhi. Also, Ministry of Health and Family Welfare has inaugurated 10 new Amrit pharmacies across the India. These Amrit pharmacies provide life savings and essential medicines at a discount ranging from 50% to 90%, substantially bringing down the treatment cost for the patients, especially those from low income backgrounds. Right, students? So take a note of this. So we are talking about Amrit Pharmacy's 10th anniversary, location Bharat Mandapam. And here the first outlet was launched in 2015 at AIIMS, New Delhi. Next, students, India Skill Report 2026 has been released and the unemployment and the employability has risen to 56.35%.
right? Take a note of this. So this rise in employability, it is showing a growing shift towards a skill first economy, towards a skill first economy. What does this mean? That the individuals who are having skills will get jobs, right? And even you have seen for the past few years, students, India have continuously worked upon enhancing the skill of the youth in India, right? And here we are seeing that the digital skills, correct, AI adoption, global force mobility, they have played an important role. And with this, even individuals, the youth, they are more inclined towards getting skilled and get good job, correct? So here if we see educational testing service in partnership with CII, AICTE, AIU and TEG, they have released together the 13th edition of the India Skill Report. So this is the 13th edition of the India Skills Report that was released, and as per the report, India's employability rose to 56.35% in 2026 from 54.81 in 2025. The report showed that the women employability now stands at 54%, surpassing men employability at 51.5%. And this is for the first time in 5 years we are seeing that hybrid work and digital skilling initiative is leading a change, and women participation is now more compared to that of men. Also, if we see, the report highlighted that India now holds 60%, 16% of the global AI talent, which is expected to increase to 1.25 million professionals by 2027. Also, the gig economy workers, it is to reach 23.5 million by 2030. Right, students? If we see states with the highest employability, it is UP, then Maharashtra, and then Karnataka. Right, and emerging employability hub, if we talk about tier 2 and tier 3 cities, right, Lucknow, Kochi, Kerala, right, then union territory like Chandigarh, they are emerging robust employability hubs in India, fixing the urban and rural skill gap that we are seeing. Next is IOCL, that is Indian Oil Corporation Limited, BPCL Bharat Petroleum Corporation Limited, HPCL Hindustan Petroleum Corporation Limited. They have signed 1-year contract to import 2.2 MTPA, that is your million tons per annum of liquefied petroleum gas, and this is for 2026. And we will be, who will be the supplier here? It will be USA that will be supplier. So these organizations, they will be importing this 2.2 million tons per annum LPG from USA, and this marks India's first ever structured LPG purchase directly from the USA for a long-term supply. This 2.2 million tons per annum, it represents nearly 10% of India's annual LPG imports. Right? Take a note of this. Next, students, next is IPC, that is India Pharmacopoeia Commission. They have signed an MOU with JSPC, that is your Jharkhand State Pharmacy Council, to promote pharmacovigilance in Jharkhand, that is to promote medicine safety and boost pharmacovigilance in the state, so that the medicines that are being manufactured, they are safe, they are of good quality, their quality is good, right? And as we know that now India also exports these medicines globally, so at the international level, the quality of these medicines should be at par, right? The guidelines that have been set for the manufacturing units for the medicine should be rightly mentioned, right? Even the manufacturing plant, they have certain guidelines that need to be adhered in order to make the right quality of medicine. So all these things need to be properly done. So for this pharmacovigilance in the state of Jharkhand, this particular memorandum of understanding has been signed. Right, students, take a note of this. Moving on. Next is Asia's largest elevated metro depot inaugurated in Mumbai for line 2B. I repeat, Mandale Depot for Mumbai Metro Line 2B, spread over 32 hectares, was inaugurated in Mumbai, Maharashtra, becoming Asia's largest and first elevated metro facility. This is 23.6 km long elevated Metro Line 2B that connects DN Nagar in Andheri West to Mandale in Mankhurd east of Mumbai. Directly remember this. Next is Goa Police became the first in India to achieve 100% cyber fraud response rate. That is, 100% response rate in cyber fraud cases, right, has been achieved by Goa Police. The Goa Cyber Police Unit enhanced its capabilities to investigate, respond and promote timely relief to victims, gaining national
recognition. Despite steady annual losses due to cyber fraud, such a high response rate indicates improved vigilance, operational efficiency in the state's law enforcement. Right, and there is also a helpline number, that is 1930. Moving on, next is international affairs students. 8th edition of India-France bilateral exercise Garuda began in France. So this is between Indian Air Force and France Air and Space Force. This is the 8th edition of this exercise, that is Garuda, right? And it is held where? It is held in France only. This exercise will run till 27th of November. And from Indian side, from Indian Air Force, if we see, it is Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet that took part here. Then C-17, IL-78, these took part in this exercise. From France, it is Rafale that took part, right? And this is the 8th edition of this exercise. Moving on, students, next is the 3rd edition of the International Ayurveda Conference held in Sao Paulo in Brazil. Correct. This conference is held from 14th to 15th of November and marked the 40 years of the practice of Ayurveda in Brazil. Brazil is the first South African American country to recognize Ayurveda. Important students, there is a theme I want you here to remember: diversity and inclusion in Ayurveda, caring for everybody and every being. This is the theme here for this 3rd International Ayurveda Conference. Moving on to awards and recognition, students. Union Minister Sarbandana Sonowal conferred with the Son of the Soil Award. Right? Take a note of this. This Son of the Soil Achievers Award 2025. Right? This is the 5th edition of these awards. This was presented by Sarbandana Sonowal ji. Where these awards were held? Tejpur, Assam. Right? So Sarbandana Sonowal conferred the Son of the Soil Awards. Right? So these awards were given by whom? By Sarbandana Sonowal ji. Take a note of this. There are 3 categories, that is your emerging achievers, lifetime achievement, and social sector development. Correct? Just go through the list once, students. Important is the location where these awards were held, Tejpur, Assam. And this is the 5th edition of it. Next is Science City, Kolkata's Climate Change Gallery on the Edge has won the CIMUSET award. Right? What is this CIMUSET? This is your International Committee for Museum and Collection of Science and Technology Award. Correct? So Science City, Kolkata's Climate Change Gallery on the Edge, right? They have recently received this International Committee for Museum and Collection of Science and Technology Award. This award was presented at the 27th International Council of Museum General Conference that was held where? It was held in Abu Dhabi in Dubai. In Dubai, UAE, not Abu Dhabi, in Dubai, UAE. Right? That is highlighting India's innovative contribution to science museums. Correct? So this is the 27th ICOM General Conference in Dubai, UAE. Climate Change Gallery on the Edge has won this award, and it was organized by CIMUSET under the ICOM. And this award is basically to promote awareness, climate literacy, and collective climate action. Next is appointments and resignation. National Award winning actress Kirti Suresh has been appointed as the UNICEF Indian Celebrity Advocate. This will promote she will promote awareness on children's right, mental health, education, and gender equality. Direct question. Moving on, India's first indigenous high precision and compact diode laser launched at ESTIC in New Delhi. What is this ESTIC? It is your Emerging Science, Technology and Innovation Conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. And recently, India's first indigenously high precision and compact diode laser has launched here. This diode laser, it supports quantum encrypted communication via quantum key distribution, providing enhanced cybersecurity for financial and banking transactions. Right? Next, and it has been developed by whom? It has been developed by Prinsk Private Limited. Right? It has been developed by Prinsk Private Limited. Next is obituary, students. Veteran Bollywood actress Kamini Kaushal has recently passed away at the age of 98 in Mumbai, Maharashtra. Next is important is International Day for the Prevention of and Fight Against All Forms of Transactional Organized Crime, observed on 15th of November. And this day is observed to raise awareness about the emerging threat to the transactional organized crime. This year it was the 2nd edition of this. There is a theme, students, theme being
follow the money, stop the organized crime. This is the theme here. Moving on, next is National Press Day, observed on 16th of November, and this day is observed basically to commemorate that day. Press Council of India (PCI) began functioning, safeguarding journalistic standards and protecting the press freedom. There is a theme here that I want you all to remember. Theme being safeguarding press credibility amidst rising misinformation. So this is the day, that is National Press Day, observed on 16th of November. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. This is very beneficial for all the students preparing for the comment exam, students. So do watch our revision part on regular basis, students, and do take a note from these revision parts, right? Also, students, if you are new here, I want you all to subscribe and do hit the like button. I want to see maximum likes from all the students watching this video. Now move to the revision part. The Indian Business Confidence Index has surged to what? It surged to 149.4 in the first quarter of FY26 according to the Business Expectation Survey released by the National Council of Applied Economic Research in the August 2025. Next, mention the company that signed a memorandum of understanding with Federation of Indian Export Organization to enhance e-commerce export potential of MSMEs in India. It is Amazon India. This collaboration will establish a dedicated e-commerce export task force to create a policy and infrastructure roadmap that will enable the seller readiness and increase awareness about e-commerce export opportunities. Next, what is the real GDP growth projection for India for calendar year 25 as announced by Goldman Sachs Group's Incorporation in August 2025? So it is projected to grow by 6.5%. Earlier, or one more thing, for calendar year 26, its projection is 6.4%. Next, where will Bharat Earth Movers Limited manufacture the country's premium Vande Bharat, Amrit Bharat and Metro Rail coaches as announced by the state's Chief Minister in August 2025? So it will be in Madhya Pradesh, right? And Dr. Mohan Yadav ji, he announced this announcement, correct? And he is the Chief Minister of Madhya Pradesh. Next, identify the company that has signed a teaming agreement with German firm High Performance Space Structure Systems GmbH to co-develop and supply deployable antenna reflector subsystems for advanced satellite applications in India. So identify that company. It is Paras Defense and Space Technologies Limited. This agreement has been signed between the two entities for initial term of 2 years with possibility for further expansion. Also, this strategic partnership marks a major step in India's journey towards self-reliance in space technologies that aligns with Prime Minister's Narendra Modi's Atmanirbhar Bharat vision and also Make in India initiative. Next, mention the entity that has signed a memorandum of understanding with Bharat Sanchar Nigam Limited to implement India's first 5G captive non-public network in the refinery sector. It is what? It is your Numaligarh Refinery Limited. Take a note of this. This collaboration aims to implement India's first 5G captive non-public network in the refinery sector to deliver secure, ultra-reliable and real-time industrial connectivity. Next, mention the name of the country from which Bharat Earth Movers Limited secured the first overseas rail and metro contract worth $1 million for retrofitting and reconditioning their mass rapid transit system. It is Malaysia. Next, mention the company that partnered with French satellite service provider Eutelsat to deliver OneWeb low Earth orbit satellite connectivity across India. It is Nelco Limited. Next, identify the company that in partnership with L&T announced a strategic collaboration with the government of Andhra Pradesh and industry partners to develop India's first Quantum Valley Tech Park in Amravati, Andhra Pradesh. Which is it? It is LTI Mindtree. Take a note of this. India's first Quantum Valley Tech Park in Amravati, Andhra Pradesh. Next, what was India's retail inflation in July measured by CPI as per the Consumer Price Index for rural urban combined for month of July released by NSO, National Statistics Office. So what was the India's retail inflation? It was 1.55%. Next, identify the company that signed an agreement with Suzlon Energy Limited for the development of 700 megawatt wind energy project in Anandpur district of Andhra Pradesh. It is Tata Power Renewable Energy Limited. Even Tata Advanced Systems Limited, students remember, they are setting up a semiconductor manufacturing fabrication unit that is in Dholera. Dholera is in Gujarat. Next,
Mention the company that became the first Indian company to join International Council on Mining and Metals in the month of August. It is Hindustan Zinc Limited, right? And this marks the first new member since the Boliden Swedish company joined in 2021. Next is which company has signed a non-binding heads of agreement with POSCO Group to jointly explore setting up a 6 million tons per annum integrated steel plant in India through a 50-50 joint venture. I repeat, recently which company signed this non-binding heads of agreement? It was signed by JSW Steel Limited. Take a note of this, and it is to jointly explore setting up a 6 million ton per annum integrated steel plant in India through a 50-50 joint venture. Next, the SEBI extended the timeline for the implementation of a framework related to the process of margin obligations through pledge and repledge within the depository systems to what? To 10th of October 2025. And here remember, this framework is related to the process of margin obligations through pledge and repledge within the depository system, and it is from 10th of October 2025. Instead of their initial deadline that was 1st of September, that was changed to 10th of October. Next, India's credit rating agency ICRA Limited projected India's GDP to grow in the first quarter to what? It is 6.7%. Next, mention the name of the airline company with which Indian Oil Corporation Limited signed a memorandum of understanding for the supply of sustainable aviation fuel. It is with Air India. And here this development came after the IOCL. It became the first Indian oil company to get the International Sustainability and Carbon Certification, right? Take a note of this. Next, which company became the first Indian company from the energy sector to join the Renewable Energy 100 initiative, taking a major step in the clean energy? It is the Suzlon Group, right? And this RE100 initiative, right, it is a global platform that brings together leading businesses committed to running entirely on the renewable electricity. Next, according to the report released by which of the following in August 2025, the Indian economy may have recorded a growth rate of around 6.8 to 7% in the first quarter from April to June of FY26. So according to the report, which of the following Indian economy? It is SBI Research. Correct? Next, identify the company that has signed a memorandum of understanding with Japanese company Mitsui OSK Lines Limited, right, to that is Trade Walls Incorporation, to strengthen the cooperation in automobile trade between India and Africa. It is Suzuki Motor Corporation, right? And this MOU, it was signed during the 9th Tokyo International Conference on African Development that was held in Yokohama, Japan. And this MOU will focus on identifying the existing challenges in the automobile trade operations between India and Africa. Also, here various potential solutions will be explored that will include digitalization and promoting decarbonization. Next, mention the finance company that sanctioned a term loan of 199.7 crore rupees to Surat Integrated Transport Development Corporation Limited for developing India's first international standard multimodal transport hub in Surat, Gujarat. So mention that finance company. It is Indian Railway Finance Corporation, IRFC. That is India's first international standard multimodal transport hub, and it is located where? In Surat, Gujarat. Next, to develop Dash Engineers India Limited, they have signed an MOU with National Power Corporation of India Limited in August. So it is to develop Bharat Small Modular Reactors, right? These are small nuclear reactors. And as per the MOU, EIL Engineers India Limited will provide the engineering service requirement for the development of these small modular reactors, that is your Bharat Small Modular Reactors. Next, according to August 2025 issue of EY Economic Watch released by Ernst & Young in August, India could become the world's second largest economy in terms of the purchasing power parity by which year? This will happen by the year 2038. So that's all for the day, students. Now it's time for the revision part. Name the indigenously developed automatic train protection system commissioned by the Indian Railways on the Mathura-Kota section of the Delhi-Mumbai corridor in July as a part of the railway safety modernization. So, which is that
automatic train protection system that was launched, that is Kavach 4.0, that is the fourth version of this was launched. This will receive formal approval from Research Design and Standard Organization, that is RDSO, in July, right? And with this we will be seeing there will be a national rollout within the next 6 years of this program, and with this the train safety will be enhancing, the train collisions will be reduced, and it will enhance the railway infrastructure. Next, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved an additional outlay of how much amount for the central sector scheme, that is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, during the 15th Finance Commission cycle for 2021 to 2026. It is 1920 crore rupees. Take a note of this, right? And we are talking about the 15th Finance Commission cycle here, right? That is from 21-22 to 25-26 here. Also take a note of this. Here focus will be on various projects that will be enhancing the food security, right, as well as the food value chain. Cold storages will be focused here. Next, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved 4 multi-tracking projects under the Ministry of Railways at an estimated cost of 11,169 crore rupees. Which of the following state is not among the 6 covered under these projects? Which is it? It is Uttar Pradesh, that is UP. Take a note of this. Next is mention the name of the nationwide 100-day campaign launched by the Investor Education and Protection Fund Authority in July for the shareholders to provide knowledge about claiming the unclaimed dividends. It is Saksham Niveshak, right? To claim the unclaimed dividends here, this Saksham Niveshak, this is a 100-day nationwide campaign that was launched from 28th of July till 6th of November 2025. Next, where was India's first indigenously built 1 megawatt green hydrogen power plant inaugurated by Union Minister for Port, Shipping and Waterways Sarbandana Sonowal on 31st of July. So, where was this inaugurated? It was in Gujarat, right? And the project was executed with engineering support from L&T Limited, that is based in Chennai, Tamil Nadu. And this is the first of its kind green hydrogen facility installed at an Indian port and forms a part of a 10 megawatt project under National Green Hydrogen Mission. Next, mention the organization that launched the AI-powered initiative titled AI-powered context-specific Agromet Advisory Service for Climate Resilient Agriculture at Scale. This was during an Inception workshop held in July at Hyderabad. So, mention that organization. It is International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Next, name the mission launched by the Ministry of Tribal Affairs in August through regional process labs in Dehradun and Bhubaneswar to build a network of tribal grassroots functionaries across India. So, name that mission. It is Adi Karam Yogi Abhiyan. This initiative aims to create a vibrant network of 20 lakh tribal grassroots functionaries and village level change leaders covering 1 lakh tribal dominated villages. Next, India's first ever grassland bird census released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in July was conducted in which national park? It was in the Kaziranga National Park, right? And this census was from 18th of March till 25th of May, right? And various technologies was used here to monitor the grassland bird species. Next, students, is our homework section. First question is, tell me recently which edition of India Bhutan Border Management and Security meeting was held, and location also where was this held. Second question, tell me recently which city became the first Indian city with real-time flood monitoring and decision support system, which is the city that, right? First Indian city here. Then third question, tell me recently, if I ask you, Reliance, they have partnered with which company in order to develop AI products in India? Fourth question, if I ask you students, BRO, Border Road Organization's project Arunanak, right? It observed which raising day recently? And fifth question, students, recently, if I ask you which state has imposed a green tax, right, on out of state vehicles, means the vehicles that will be coming out of the states in that particular state, they will be imposed with this green tax. So which is the state and from which date this tax will be coming into play?
So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 18 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, आज की बात में हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया जनजातीय गौरव दिवस को। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने सेलिब्रेट किया अमृत फार्मेसी का 10वीं एनिवर्सरी। देन इंडिया स्किल रिपोर्ट अभी रिलीज की गई। एंड IOCL, BPCL, HPCL, इन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 2.2 मिलियन टन पर एनम LPG गैस को इंपोर्ट किया जाएगा। कहाँ से? USA से। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया जनजातीय गौरव दिवस। राइट, ये जनजातीय गौरव दिवस बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जी। राइट, एंड नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में ये इवेंट हमें देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको अभी एड्रेस किया गया। यहीं पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9700 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए। यहीं पे देखेंगे इन्होंने गोविंद गुरु चेयर को एड्रेस किया, राइट, इस्टेब्लिश किया। फिर यहीं पे इन्होंने PM जनमान स्कीम लॉन्च की। PM जनमान क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान एंड DA जगुआ, जो कि है धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये यहाँ पे लॉन्च किए। देन इन्होंने 42 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स डेडिकेट किए ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। 228 मल्टीपर्पज सेंटर्स को लॉन्च किया गया। देन 250 बसेस को यहाँ पे लॉन्च किया गया ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। करेक्ट। इसी के अलावा इन्होंने 750 किलोमीटर लंबे नए रोड्स यहाँ पे लॉन्च किए। इसी के अलावा हम देख रहे हैं कि जो ट्राइबल एनरोलमेंट है एकलव्य मॉडल स्कूल्स में वो बढ़ता हुआ दिखा, विच लेड टू 60% इंक्रीज इन द ट्राइबल एनरोलमेंट। देन धरती अब्बा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान में 60,000 विलेजेस का भी इन्फॉर्म किया गया इनको कि इस कैंपेन में हम जो पाइप ड्रिंकिंग वाटर है, टेलीमेडिसिन है, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसको इंक्लूड किया जा रहा है। देन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स होते हैं अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको 20 से बढ़ा के 100 कर दिया गया। राइट, तो इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पे ट्राइबल लोगों को बेनिफिट देखने को मिल रहा है। एंड हम ओवरऑल देख रहे हैं जो ट्राइबल लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा, उन कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्टूडेंट्स, इन्होंने सेलिब्रेट किया अमृत फार्मेसी के 10 साल पूरे हो गए। 10th ईयर ये सेलिब्रेशन का था। अमृत क्या है? अमृत की एक फुल फॉर्म आ सकती है, ये जरूर याद रखेंगे, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। राइट, ये है अमृत एंड फार्मेसी। इसका 10वीं एनिवर्सरी थी। इवेंट कहाँ हुआ? लोकेशन क्या रहेगी? भारत मंडपम में हमें देखने को मिला था इन न्यू दिल्ली। राइट, एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने इनॉग्रेट करे, क्योंकि 10वीं एनिवर्सरी थी तो 10 नए अमृत फार्मेसीज आउटलेट्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। यहाँ पे इन आउटलेट्स में 50 से 90% सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पे हमें मेडिसिन देखने को मिलती हैं। राइट, एंड जो कॉस्ट होती है पेशेंट की वो कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया स्किल रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, अभी रिपोर्ट आई जो बताती है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है इंडिया में 56.35% तक बढ़ गई। एंड पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि वीमेन्स ने एम्प्लॉयबिलिटी रेट में सरपास कर दिया है मैन को। अगर हम वीमेन की बात करें तो वीमेन की एम्प्लॉयबिलिटी 54% है, वहीं पे मैन की 51.5% देखने को मिली फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये जो हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिख रही है ना, ये दिखाता है कि जो स्किल फर्स्ट बेस्ड इकोनॉमी है ना, उस पर ज़्यादा जोर है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से इंडिया में स्किल्स को इम्पार्ट करने के लिए, लोगों को स्किल्स सिखाने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? लोग अगर स्किल्ड होंगे, यूथ अगर स्किल्ड होगा तो वो जॉब मार्केट में आ सकेगा। राइट, वो अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकेगा एंड अपनी स्किल्स के हिसाब से उनको जॉब मिल सकेगी एंड इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर सकेगा। राइट, इवन इसीलिए हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम यूथ एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, वो जॉब्स चाहता है, वो स्किल चाहता है। राइट, इवन इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो AI टैलेंट है ग्लोबली, अगर हम देखें इंडिया 16% ऑफ द ग्लोबल AI टैलेंट को होल्ड करता है। वहीं पे अगर मैं गिग इकोनॉमी की बात करूं, 23.5 मिलियन लोग गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे 2030
2030 तक, ये प्रोजेक्टेड अनुमान है, राइट। फिर इसी के अलावा अगर हम देखें स्टेट्स विद हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में भी हम देख रहे हैं, जैसे लखनऊ यूपी, कोची केरला, राइट, इवन यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़, ये एक एमर्जिंग हॉटस्पॉट बनते हुए देख रहे हैं फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। मूविंग ऑन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि 2.2 मिलियन टन पर एनम ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलपीजी गैस को इंपोर्ट किया जा सके। कहाँ से? यूएसए से। ये जो 2.2 मिलियन टन पर एनम है, ये 10% है इंडिया के टोटल इंपोर्ट का, मतलब 10% तक हम यहाँ पे जो टोटल इंपोर्ट करते हैं वो अब हम यूएसए से इंपोर्ट करते हुए देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आईपीसी, इंडियन फार्माकोपियो कमीशन, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ ताकि फार्माको विजिलेंस के ऊपर काम किया जा सके झारखंड में। देखो को विजिलेंस क्या हो गया, मतलब यहाँ पे कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग है दवाइयों की उन पर, जो पूरी फैक्ट्री है उस पर, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन पर एक प्रॉपर से विजिलेंस कर सकें ताकि क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन की जा सके, राइट, जो आउटपुट हो वो अच्छा हो सके। जिस तरीके से ये फैक्ट्री लगाई गई हैं, क्या वो स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्या वो गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो मेडिसिन बनाई जा रही हैं, क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं। रीज़न बीइंग क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को हम अब इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, राइट, क्वालिटी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होंगे, सेफ्टी मेजर्स फॉलो होंगे, जो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं वो फॉलो होने चाहिए, करेक्ट, इसीलिए ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं एशिया के लार्जेस्ट एलिवेटेड मेट्रो डिपो को, इसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई में फॉर लाइन 2B। ये एशिया का लार्जेस्ट एंड पहला एलिवेटेड मेट्रो फैसिलिटी रहेगा, 23.6 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो फैसिलिटी रहने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे गोवा पुलिस, ये वो पहली पुलिस बन गई इंडिया में जिन्होंने 100% साइबर फ्रॉड रिस्पांस रेट को अचीव किया। इन्होंने यहाँ पे जो भी साइबर क्राइम हुआ है, राइट, उसको इन्वेस्टिगेट किया है, उस पर रिस्पॉन्ड किया है एंड टाइमली रिलीफ प्रोवाइड कराया है विक्टिम्स को। एंड इवन यहाँ पे इनको लॉसेस देखने को मिले हैं साइबर फ्रॉड की वजह से, राइट, स्टिल इनका इनिशिएटिव दिखाता है कि जो ये एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, जिससे लोगों पे पूरा इन पे विश्वास रह सके एंड इस एरिया में जो साइबर फ्रॉड है वो कम होता हुआ देखा है। एंड इसका इसीलिए इनको यहाँ पे, राइट, ये वो पहली पुलिस बन गई है, गोवा पुलिस, जो पहली पुलिस बन गई इन इंडिया जिन्होंने 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स रेट अचीव करा है। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। 8वां इंडिया फ्रांस बायलेटरल एक्सरसाइज गरुड़ा भी हमें देखने को मिला। फ्रांस में ये एक्सरसाइज हुई थी। इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस स्पेस एंड एयरफोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया, राइट, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के द्वारा, करेक्ट, ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। ये 8वां एडिशन रहेगा गरुड़ एरोस्पेस का। फ्रांस में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। 27 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी, 16 से 27 नवंबर तक। एंड इंडिया की तरफ से सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट, C-17, IL-78 इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। एंड फ्रांस की तरफ से रफाइल का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। एंड ये 8वां एडिशन है एक्सरसाइज का। फिर आ जाते हैं तीसरे इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस में, जो कि साओ पौलो ब्राजील में हुई, राइट, 14 से 15 नवंबर तक हुई। एंड ये मार्क करती है 40 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा इन ब्राजील। एंड ब्राजील इज द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन कंट्री टू रिकॉग्नाइज आयुर्वेदा। मूविंग ऑन, फिर एक और चीज स्टूडेंट्स, थीम याद रखेंगे जिस पे ये इवेंट हुआ, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा, केयरिंग फॉर एवरीबॉडी एंड एवरी बीइंग। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल इन्होंने कन्फर किया सन ऑफ द सॉइल अवार्ड से, राइट, असम में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है लोगों को। एंड यहाँ पे याद रखेंगे 3 कैटेगरीज में इन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एमर्जिंग अचीवर अवार्ड्स, एमर्जिंग अचीवर, लाइफ टाइम अचीवमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट अवार्ड, राइट। 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड तेजपुर असम में सम्मानित किया गया है लोगों को इस अवार्ड से। एंड जो अवार्ड्स के विनर्स हैं आप उनको PDF से ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर साइंस सिटी कोलकाता क्लाइमेट चेंज गैलरी, जो कि है ऑन द एज। इन्होंने अभी अवार्ड जीता है जो कि है CIMUSET अवार्ड, करेक्ट। कहाँ पर है ये? कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइमेट चेंज गैलरी ऑन द एज, राइट। एंड ये एक यूनिट है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इनको रिसीव हुआ ये CIMUSET अवार्ड, जो कि है इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियम एंड कलेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड।
ये अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग द 27th इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि दुबई यूएई में हमें देखने को मिली। करेक्ट। इस एम क्या था इसका, बेसिकली इस अवार्ड का, टू प्रमोट अवेयरनेस, क्लाइमेट लिटरेसी एंड कलेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट पे आता है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन स्टूडेंट्स। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश, इनको अपॉइंट किया गया यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट। ये प्रमोट करेंगी चिल्ड्रन राइट्स, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी को। नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाई प्रिसीजन एंड कॉम्पैक्ट डायोड लेजर, इन्होंने इसको लॉन्च किया गया एट ESTIC न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। ESTIC क्या है, एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हमें ये देखने को मिला। ये जो डायोड लेजर है ये सपोर्ट करता है क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को वाया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोवाइड करता है एनहांस साइबर सिक्योरिटी को फॉर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स ऑब्यूटरी। वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस कामिनी कौशल, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन मुंबई महाराष्ट्र। फिर इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ये 15 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम याद रखेंगे, फॉलो द मनी, स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एंड इस बार इसका सेकेंड एडिशन था। इसके बाद आ जाते हैं फिर नेशनल प्रेस डे, 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड इसकी थीम रहेगी सेफ गार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी एमिस राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। स्टूडेंट्स हम डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड करते हैं। ये वीडियो जरूर देखा करो एंड इसके बाद PDF भी जरूर पढ़ा करो, उससे आपकी रिविजन बहुत स्ट्रांग होगी। तो चलो अब कुछ MCQ रिविजन पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी सितंबर के महीने में RBI ने अनाउंस किया नई स्कीम, ये अवेलेबल रहेगी फ्रॉम कब से कब तक, ये नई स्कीम्स अवेलेबल रहेगी 1 अक्टूबर से लेके 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, राइट। जिसका एम रहेगा फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट, एंश्योर फास्टर सेटलमेंट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स लाइंग विद द बैंक्स। नेक्स्ट, अभी सेबी ने एक्सटेंड कर दी द डेडलाइन फॉर द कंप्लीट रोल आउट ऑफ क्या, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर रिटेल एल्गोरिदम ट्रेडिंग। AI की मदद से यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिटेलर्स को भी ये ऑप्शन यहाँ पे लाया गया है और इसकी डेडलाइन अब एक्सटेंड कर दी है कब तक, 1 अप्रैल 2026 तक यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। कौन इंप्लीमेंट करेगा, CAMS एंड KFIN के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, अभी सितंबर में RBI ने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 31.8 लाख रुपीज़ किस बैंक पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक पर यहाँ पर अभी पेनल्टी इम्पोज करी गई। फिर आ जाते हैं कितना लोन अमाउंट वाज अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कितना प्रोजेक्ट अमाउंट अप्रूव किया गया था, तो $190 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए थे। फिर है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रांट किया SRO स्टेटस, किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट किया गया ये SRO स्टेटस। SR होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, RBI के द्वारा। तो किसको किया गया है ये FIDC, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। नेक्स्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेबी के साथ टू डेवलप वैलिडेट UPI हैंडल्स एंड सेबी चेक इनिशिएटिव्स लॉन्च इन अक्टूबर, जो स्ट्रेंथन करेगा इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी को। एट द रेट ऑफ वैलिड यहाँ पे ये हैंडल्स भी लॉन्च करे गए हैं। किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट बैंक जिन्होंने पार्टनर किया उमुंथू सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड लॉन्च किया है इंडिया का पहला यूथ फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन कॉस्मोस गैलगल ऐप को इन अक्टूबर। तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो कौन सा बैंक रहेगा, वो है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, उस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया जॉइंटली बाय फोनपे एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इन अक्टूबर थ्रू फोनपे ऐप, जो ऑफर करता है फिक्स डिपॉजिट बैक क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपये। तो वो है विश क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज इंडियाज GDP इन बोथ FY26 एंड FY27 एज फॉरकास्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन देयर रिपोर्ट टाइटल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ग्रोथ स्लोज एज अ न्यू ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट टॉक शेप सितंबर, रिलीज्ड इन सितंबर। तो क्या GDP ग्रोथ है, 6.5% यहाँ पे प्रोजेक्ट करी गई। फाइंड आउट द इंडिविजुअल हु इज नॉट अमंग द टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस एज पर द M3M Huron India रिच लिस्ट रिलीज्ड इन सितंबर।
तो कौन है यहाँ पे? शाहरुख खान जी इस लिस्ट में नहीं थे, राइट। टॉप किसके द्वारा की गई? सबसे पहले तो याद रखेंगे 14th एडिशन है ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का, एम3एम ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का। एम3एम काफ़ी प्रोमिनेंट बिल्डर है, गुरुग्राम हरियाणा में है ये ऑपरेट करते हैं, एंड उन्होंने कोलैबोरेट किया है यहाँ पे ह्यूरन इंडिया के साथ, एंड ये लिस्ट रिलीज की। मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9.55 लाख करोड़ की लागत से ये फर्स्ट पोजीशन पे थे, एंड सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन who were announced as the winners of the Nobel Peace Prize और Nobel Prize in Physiology और Medicine। तो आइडेंटिफाई द पर्सन्स, कौन है वो इंडिविजुअल्स? वो हैं शिमोन सागागुची, मैरी ई बर्कनो, फ्रेड रैम्सडेल, राइट। ये तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन से। नेक्स्ट, चूज द मिनिस्ट्री दैट इम्प्लीमेंट्स द नेशनल सर्विस स्कीम अंडर द माई भारत एनएसएस अवार्ड्स 22-23 दैट वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो चूज द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग जॉइंटली रिसीव द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड, किन्होंने रिसीव किया यहाँ पर? तो तीनों के द्वारा यहाँ पे इसको रिसीव किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वो है आशीष पांडे, एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो है कल्याण कुमार। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, किनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथॉन, जो कि एक नेशन वाइड इनोवेशन इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा टू एंगेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर? वो है शुभांशु शुक्ला, राइट। ये एक्सियोम 4 मिशन की मदद से किम में गए थे, बेसिकली नासा का ये मिशन रहेगा, एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये पहले इंडियन बन गए हैं। फिर आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 15th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि साउथ कोरिया में हमें देखने को मिली, राइट। तो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, करेक्ट, मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्रीज गोइंग टू को होस्ट द इनॉग्रल वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। ब्लाइंड वीमेंस के लिए ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इनको को होस्ट किया जा रहा है, राइट। मतलब को होस्ट कौन कर रही है, कौन सी कंट्रीज? तो इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्टेड बाय इंडिया इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फ्रॉम 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे, एंड ये 12वां एडिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने जीता 24वां एडिशन ऑफ F1 सिंगापुरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि मेरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ है इन सिंगापुर। तो जॉर्ज रसल के द्वारा इसको जीता गया। जॉर्ज रसल की बात करें तो ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, एंड यूके से ये बिलोंग करते हैं। सेकंड पे मैक्स वर्स्टैपेन एंड लैंडो नॉरिस ऑन थर्ड पोजीशन। फिर आ जाते हैं, पद्मा विभूषण अवॉर्डी पंडित चन्नूलाल मिश्रा, इनका भी निधन हो गया, जिनको पद्मा भूषण से 2010 में एंड पद्मा विभूषण से 2020 में सम्मानित किया गया था। इनका कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, एंड इनके लिए, इस आर्ट्स के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इनको वॉइस ऑफ बनारस के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को टू ऑनर द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ ओल्डर पीपल, जो कि पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कब? 1991 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर तक इसको ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए। आपसे यहाँ पे थीम पूछी जा रही है 71st एडिशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की थीम रहेगी सेवा पर्व। फिर अगला है वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक हम कब से कब तक ऑब्जर्व करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड स्पेस वीक को, ठीक है। एंड लिविंग इन स्पेस ये यहाँ पे थीम रहेगी, लिविंग इन स्पेस ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ पीएफआरडी ने भी एक एमओयू साइन किया ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ एनपीएस दिवस 1 अक्टूबर को, राइट। तो ये है कौन? नाबार्ड। नाबार्ड ने पीएफआरडीए के साथ ये एमओयू यहाँ पे साइन किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे। हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे कब? 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हु वन द मेंस 100 मीटर टाइटल एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुई। तो मणिकांता
होबलीदार, इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया। 10.19 सेकेंड्स के साथ इन्होंने जीता है एंड ये इंडिया का सेकेंड फास्टेस्ट टाइम रहेगा। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है। आई करेक्ट माई सेल्फ, ये पाक बे में लोकेटेड है इन तमिलनाडु, राइट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, पाक बे में लोकेटेड है आपका डुगोंग, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट, करेक्ट थीम बताओ ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, जो अभी सेलिब्रेट की गई थी 1 अक्टूबर को। तो चूज द करेक्ट थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। क्या थीम रहेगी? एम्ब्रेसिंग कोलैबोरेशन मोर देन एवर यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडियाज ओनली मड वॉल्केनो इरप्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 20 ईयर्स? तो बारातांग आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार्स आइलैंड्स, यहाँ पर इसको अभी इरप्ट हुआ आफ्टर 20 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन अक्टूबर एज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट? तो वेनेसा फ्राजेर, राइट, इनको अपॉइंट किया गया बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन अक्टूबर। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिन्होंने अचीव की नेटवर्थ ऑफ $500 बिलियन एंड ये पहले इंडिविजुअल बन गए हैं? तो ये कौन है? इलॉन मस्क, फर्स्ट इंडिविजुअल टू रीच दिस स्टैगरिंग वेल्थ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर स्टूडेंट्स, किस इंडियन स्टेट में ट्रेडिशनल फेस्टिवल मेरा हाउ चोंगबो को सेलिब्रेट किया गया अभी? तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? मणिपुर में इसको सेलिब्रेट करा गया है। नेक्स्ट है, किस मंथ में एंड ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया एंड एक्सटेंड किया द वैलिडिटी ऑफ रेमिसेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड डेवलप्ड स्कीम्स, राइट। तो रोड टैप स्कीम, राइट, रेमिटेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, रोड टैप स्कीम, राइट। किस मंथ एंड साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? तो मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया अटल इनोवेशन मिशन के साथ इन अक्टूबर टू स्केल अप अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस इंडिया? तो वो है इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, अक्टूबर के महीने में राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश, इनके द्वारा लेड किया गया इंडियन डेलीगेशन को एट द 11 G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ विच वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिली थी समिट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होती हुई दिखेगी। वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। फिनटेक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। फिनटेक होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये डे कमेमोरेट करता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ कॉसिमो दे मेडिसी। ये एक इटालियन बैंकर एंड पॉलिटिशियन थे 1464 में। इनकी डेथ एनिवर्सरी को ये डे कमेमोरेट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट एक्शन इन सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? तो 1 से 7 अगस्त तक हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को टू कमेमोरेट द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये किन के द्वारा और डिस्कवर किया गया था? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ये ऑब्जर्व किया गया एनुअली ऑन 3 अगस्त टू कमेमोरेट फर्स्ट सक्सेसफुल डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इंडिया। पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने ऑब्जर्व किया इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे को। तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका 15वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, हर साल नेशनल बोन एंड जॉइंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट्स इन द पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड टू एजुकेट देम अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ वेरियस मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड कंडीशंस? तो नेशनल बोन एंड जॉइंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 अगस्त को। नेक्स्ट, हिरोशिमा डे, या राइट, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को यूएसए ने बॉम्ब डाल दिया था। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। एटॉमिक बॉम्ब डाला था। इट मार्क्स द 80th एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 6 अगस्त। एंड फिर 9 अगस्त पे नागासाकी पे बॉम्ब डाला था, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिर नेशनल जेवलिन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल जेवलिन डे, नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जेवलिन, राइट। एंड नेशनल जेवलिन डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? जब इन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 2020 में। तो उनको ऑनर करने के लिए यह डे स्टैब्लिश किया गया था एंड 7 अगस्त को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और इस साल हमने 4था एडिशन ऑब्जर्व किया था इसका। नेक्स्ट, नागासाकी डे आ गया। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 अगस्त को, राइट। एंड कौन सी एनिवर्सरी थी? 80th एनिवर्सरी ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट डे ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन विच डेट ऑन विच ईयर? तो 1942 में लॉन्च की गई थी, अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं, एवरी ईयर व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, जिसको हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट द राइट्स, कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटीज वाइल हाईलाइटिंग द यूनिक चैलेंजेस दे फेस। तो 9 अगस्त को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। नेक्स्ट, वर्ल्ड संस्कृति डे, वर्ल्ड संस्कृत डे। संस्कृत वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसी को हम इंटरनेशनल संस्कृत डे या संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृतम दिनम के नाम से जानते हैं। श्रवण पूर्णिमा के दिन, जो कि फुल मून डे होता है, उस दिन ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द हिंदू मंथ, राइट, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। एंड ये डे मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किनकी, पनिनी, राइट, ये एक रिनोन्ड संस्कृत स्कॉलर एंड ग्रामेरियन थे। इसी का संस्कृत वीक भी याद रखेंगे, 6 से लेके 12 अगस्त तक हम ऑब्जर्व करते हैं संस्कृत वीक को। नेक्स्ट, वर्ल्ड लायन डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th ऑफ अगस्त। तो वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है लायंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। पैंथरा लियो यहाँ पे लायन का साइंटिफिक नेम होता है, राइट, एंड इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में, उसको हाईलाइट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। पूछा जा रहा है ये कौन सा एडिशन ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड लायन डे का, तो ये 13th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड लायन डे का। नेक्स्ट है, हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द यूजिंग बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल्स, राइट, ग्रीन फ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए एंड फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम यूज किया जा सके। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, हर साल ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड स्टील पेन डे ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील पेन, द नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो 11 अगस्त को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका 3rd एडिशन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 12th ऑफ अगस्त टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स नोन एज द जेंटल जायंट्स वर्ल्ड वाइड। थीम पूछी गई है वर्ल्ड एलिफेंट डे की, क्या रहेगी? थीम है ब्रिजिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, ये थीम रहेगी। 12 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो होस्ट को फॉर 2025 के इंटरनेशनल यूथ डे ग्लोबल इवेंट को, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो होस्ट को आइडेंटिफाई करो, वो है नायरोबी कीनिया। इवन नायरोबी कीनिया हेडक्वार्टर है कहाँ का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th ऑफ अगस्त टू कमेमोरेट फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट 1954 में। आपसे थीम पूछी जा रही है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की 2025 की, तो थीम क्या रहेगी? थीम है आंसरिंग द कॉल। नेक्स्ट, हर साल इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट द यूनिकनेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग लेफ्ट हैंडर्स who account for approximately 10% of the world's population, राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे? ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे हर साल। कब? ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 13 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 14 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 5th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। 14 अगस्त को ही पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 अगस्त को, राइट। ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो इंजर्ड हो गए और जिनकी डेथ हो गई, राइट, दूसरे लोगों की हेल्प करते टाइम, उनके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने इसका 22वां एडिशन ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं सद्भावना दिवस या हार्मनी डे, ये हम 20 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं पीस, यूनिटी, हार्मनी को प्रमोट करने के लिए। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द डेथ और ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 अगस्त को। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, 21 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम पूछी जा रही है आप इसकी, क्या रहेगी थीम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे की? एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन, ये ऑब्जर्व किया गया टू ऑनर द मेमोरी ऑफ ऑल द पीपल who suffered under the transatlantic slave trade during the colonial era, right। तो हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड अबॉलिशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 अगस्त, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 23 अगस्त को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट,
नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करते हैं हम 23 अगस्त को इसरो की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, जो था चंद्रयान 3, राइट। इंडिया 4th कंट्री बन गया जिन्होंने साउथ पोल के पास यहाँ पे लैंड करा अपना रोवर ऑन द मून। ये एक अपने आप में अचीवमेंट है एंड इसको ऑनर करने के लिए डे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और एक और चीज़, ये सेकेंड एडिशन है नेशनल स्पेस डे का जो हमने ऑब्जर्व किया। 2023 में हमने लैंडिंग की थी साउथ पोल पे चंद्रयान 3 ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर वीक, राइट। ये इसकी थीम पूछी जा रही है और कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाता है ये भी याद रखेंगे, राइट। तो वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया जाता है 24 से 28 अगस्त तक। ये इसका 35वां एडिशन था वर्ल्ड वाटर वीक का, राइट, मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट हम प्रमोट कर सकें एंड क्यों उनका वेपन न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। इसका 16वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ध्यानचंद सिंह जी। ये हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं बहुत बड़े एंड इन्हीं को विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जानते हैं एंड 14th एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया नेशनल स्पोर्ट्स डे का। On the occasion of the 70th anniversary of the State Bank of India on 1st of July, in which two cities did SBI inaugurate अपना specialized global trade finance center? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कोलकाता में एंड हैदराबाद में इन्होंने इसको लॉन्च किया। यहीं पे एसबीआई ने, याद रखेंगे, एक अपना अनाउंस किया है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, जो कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने का काम करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें हेल्प करेगा एंड नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है 2070 का उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने भी पार्टनर किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जून के महीने में टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक्स नेटवर्क। वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म जो सपोर्ट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सेगमेंट्स को इंडिया में, एमएसएमईज को। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सब्सक्राइब टू 1301.25 करोड़ रुपीज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इशू किए गए हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा जुलाई के महीने में, ताकि सपोर्ट किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग को इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है ये आरबीआई की, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच डिड द IFC कमिट टू इंटीग्रेट ट्रस्ट। इंटीग्रेट ट्रस्ट ये आपका एक इन्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। एंड IFC ने कितना कमिट किया इंटीग्रेट ट्रस्ट में इन जुलाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट 180 मेगावाट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट में, जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात में रहेगा। तो 460 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, फंड करने की बात की गई बाय IFC इन दिस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड ये 460 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे थ्रू लॉन्ग टर्म लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर RBI's फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो कि टैक्सेबल है फॉर द पीरियड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025 विद इंटरेस्ट पेबल ऑन 1 जनवरी 2025। तो 8.05% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट UAE बैंक जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम IFSCA टू सेटअप अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट विद इन गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो कौन सा वो बैंक है, पहला बैंक बना UAE का जिन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप किया है, वो है माशरेक बैंक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी रिसेंटली which edition of India Bhutan border management and security meeting was held and location also where was this held. Second question, tell me recently which city became the first Indian city with real-time flood monitoring and decision support system, which is the city that, right, first Indian city here. Then third question, tell me recently, if I ask you Reliance, they have partnered with which company in order to develop AI products in India. Fourth question, if I ask you students, BRO, Border Road Organizations Project Aru Nanak, right, it observed which raising day recently. And fifth question students, recently if I ask you which state has imposed a green tax, right, on out of state vehicles, means the
the cars, the vehicles that will be coming out of the states in that particular state, they will be imposed with this green tax. So which is the state and from which date this tax will be coming into play. So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.